नमस्ते भारत एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ग्लोकल खबर। मैं हूं आपकी होस्ट श्रेयास्था और आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड भावना जी फ्रॉम कामाक्षी स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। भावना जी, अ वेरी वेरी वार्म नमस्ते टू यू एंड आई एम सो प्राउड दैट इतनी ही कॉम्प्लेक्स डोमेन है इजोटेरिक साइंसेस, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसमें टैरो है, इसमें वास्तु है। ओ माय गॉड, आप इतने सारे क्लाइंट्स को लेते हो, आपने हीलिंग मोडालिटीज भी देते हो। मेरी ऑडियंस तो आज बहुत लकी है, बहुत खुश हो जाएगी बिकॉज you are a young lady and I'm so proud of you. You even have a very nice professional background. एंड मैंने जहाँ तक आपको फॉलो किया है और आपके क्लाइंट के रिव्यूज देखे हैं, मैं खुद एकदम आई एम लाइक रियली रियली वेरी हैप्पी टू सी अ यंग फेस, a beautiful person inside out. I have taken consultancy from you also, so I can vouch for you. And please tell us more about yourself. आपने ये beautiful spiritual journey कैसे शुरू की? And the floor is all yours. जी भावना जी। सबसे पहले शुरू करते हुए मैं अपने इष्ट को नमस्कार करूंगी क्योंकि आई बिलीव मुझे जो भी मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है। सो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म महाकाल महाराज की जय, कालका माई की जय। जय जी। So beginning with my journey. So it started just with a curiosity since childhood when I was really curious about making solar system models. You remember हमारे स्कूल में social science exhibitions होते थे and सोलर we were चार्ट given बनाते different थे, topics, हाँ, है ना? 3D मॉडल, तो 2D I मॉडल। was I was always so intrigued and so much into it that I want to make a running solar system model. Okay, so I made one as well. I was so intrigued about the planets. Yeah, I fitted the motor and the straws and everything. So I did that. So that was really interesting. So it came from that curiosity that how is everything moving? How is everything working? How do planets impact us? And then my study background was such an infrastructure industry and everything where we build things and design the structures. So there was a subject I studied, Vastu. Okay, so from there Vastu started. So Vastu gave me more interest to go, go a little more deeper into the sciences to understand more about the energies, about the planets, about the directions and everything. So the interest grew more and more, in the course of time. Like first I studied Vastu, then the interest grew in astrology. And then there was a time in my life where I was in a very low side where I was going to astrologer, the other astrologer, and everybody was like, ये कर लो इससे ये ठीक हो जाएगा, वो कर लो इससे वो ठीक हो जाएगा. And then people introduced me to tantra as well कि आपके घर पे ये है, आपके घर पे वो है. And I was so frustrated. स्टैंडर्ड फियर मॉन्गरिंग, राइट? जो स्टैंडर्ड फियर, Yes. ये तो होगा ही आपके साथ, ये तो हाँ, आपने ये नहीं किया तो ये होगा। ओ माय गॉड, वो तो और एंजाइटी, हम हमारी एंजाइटी दूर करने exactly. आए थे, तो बढ़ा दिया हाँ, इन लोगों ने यार। exactly. So all this happened and I was like always with this attitude in my life कि मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी. So that ओके। kicked it. And वहां पे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि I was so frustrated and I was totally in the energy कि नहीं यार मुझे नहीं पूछना किसी से, मैं खुद सीखूंगी और खुद सॉल्व करूंगी. What is the big deal in that? ये लोग ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ सकती, कि जो मैं नहीं जान सकती, है ना? It all started from there. So I remember the days when I started with just little upasana of Bhairav. Okay, it came in general in the hierarchy of praying Bhagavati, as I'm a Bhagavati sadhak. So वहां पे ये कहा जाता है कि भगवती के तरफ जाने का रास्ता जो है वो भैरव ही तय करते हैं. अगर आपको उनके रक्षक की, उनके जो उनके साथ रहते हैं उनकी परमिशन नहीं मिली तो आप भगवती तक पहुंच नहीं सकते. तो इट ऑल हैपेंड जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ अ रिवर. सो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि शिवा को मैं शुरू से बिलीव करती थी. आई वाज नॉट ऑलवेज अ वेरी रिलीजियस पर्सन. आई वाज मोर स्पिरिचुअल. Like I knew the energies existing. I always knew that there are certain energies which is processing all this, जिनकी वजह से सब कुछ फंक्शन हो रहा है. ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा ये सब नहीं करती थी. बट देन धीरे धीरे आप जब अपनी लाइफ में एक वीक टाइम देखते हैं तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि कोई हो जो आपका साथ दे. एंड देयर इज व्हेन आपको ये पता लगता है यू आर रियली अ ब्लेस्ड चाइल्ड व्हेन आपको भगवान का रास्ता मिल जाए. यूजुअली लोग ऐसे टाइम में भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं. बट आई रियलाइज दैट दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आई कनेक्टेड टू महाकाल. I connected to him so deeply. I was a child who never went out from my home without my parents. I went on the journey. I went to Jain, and that's how it started. It's all started from here when I just had a view. मैंने दर्शन किए, and I was in the psych zone for at least 10 minutes. That जय I have महाकाल come. जो कहते हैं हम, महाकाल जी ने जी जी, रास्ता जैसे ही होता है खोल ना दिया। जय महाकाल. तो वहां से उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे चमका दिया हो पूरा कि यहाँ से सब सॉर्टेड है. तो बस वहीं से जर्नी चालू हुई. आई लर्न मोर मोडालिटीज. आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, हीलिंग. आई लर्न एवरीथिंग. इट वाज बेसिकली आई वांटेड टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये आपका सब जैसे है एक क्या, हाउ इज रीबर्थ, इट वर्किंग. स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ, आई कैन से, राइट? इट वाज अ अवेकनिंग भी कॉल इट. ट्रांसफॉर्मेशन। जी जी जी, काफी हाँ. इंटरेस्टिंग है, गिव्स मी या. गूज़बम्प्स जस्ट बाय। या. सो यस भावना जी, लाइक हमने डिस्कस किया है सो फार सो मेनी थिंग्स, तो मेरे को एक दो और चीजें, जैसे आपने कहा हीलिंग के बारे में, ये बहुत ही
काफ़ी लोग ये सरफेस वाली चीज़ नहीं, ये काफ़ी डेप्थ में जाना है। जैसे अभी आप कुछ देर पहले एक्टर्स के बारे में कह रहे थे कि स्टार्टिंग में वो कैसे रोल्स कर रहे थे और वो कैसे-कैसे धीरे-धीरे डेप्थ में आए। आई थिंक वो सबके करियर में होता है कि हम पढ़ के आते हैं या हम कुछ चीज़ें सीख के आते हैं, जैसे कारपेंटरी हुआ या पेंटिंग हुआ। वो स्टार्टिंग में हम थोड़ा ही कर पाते, लेकिन धीरे-धीरे जैसे हम उसको करते रहते हैं प्रोग्रेसिवली या हमें उस डायरेक्शन में इम्पोर्टेंट है कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते रहें, तो ही हम वो डेप्थ डेवलप कर पाते हैं। एक्चुअली ये सब सब लोग ये काम नहीं कर पाते। वो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है। तो क्या आप ये थोड़ा एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि ये क्या है? और क्यों ये होता है? क्यों एक्चुअली करना ये ज़रूरी है? एक्चुअली क्या हुआ है ना कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी लाइफ में मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, हमारे लाइफ के वैल्यूज घटते जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, देयर वर बेसिक प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में संस्कार होते थे, जैसे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हमारे 16 संस्कार होते हैं जो एक मनुष्य के जीवन में प्रैक्टिस किए जाने चाहिए। अब उसमें से बहुत कम ही ऐसे संस्कार रह गए हैं, मेरे ख्याल से 3 ही तो रह गए हैं। एक जब हमारा जन्म का होता है, अपना नामकरण संस्कार, उसके बाद हमारा विवाह संस्कार और अंत में हमारा अंतिम संस्कार। सिर्फ ये 3 संस्कार रह गए हमारे जीवन के। बहुत ही कम फैमिलीज अब हमारे पुराने बैकग्राउंड्स के जो अभी भी अपनी वैल्यूज को कैरी कर रहे हैं, बहुत कम फैमिलीज हैं जो अपने और भी संस्कारों को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग बेसिकली कहाँ से आता है कि हम अपने ना, जैसे पितृ दोष वगैरह लोगों की कुंडली में बनता है, जिसको आजकल मतलब हम काल सर्प दोष के रूप में भी कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम जब हम पीछे जाते हैं और बाकी सारी चीजों को समझते हैं, तो वो पितृ दोष ही होता है एक्चुअली। हमारे एंसेस्टर्स का जो भी बर्डन रहा है, ट्रॉमा रहा है, वो कैसे हमारी लाइफ में रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति जन्म लेता है तो हम पर्टिकुलरली अपने एंसेस्टर्स से डीएनए लेके आए हैं, राइट? करेक्ट, एक करेक्ट, लाइफ करेक्ट। ट्री बनता है, एक फैमिली ट्री बनता है। तो उस डीएनए में सिर्फ और सिर्फ हमारे फेस स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, फीचर्स, क्वालिटीज, ये सब सिर्फ ये नहीं आता है, इसके साथ ट्रॉमा भी आता है, अच्छा, अलग वाह! अलग बॉन्डेजेस भी आते हैं, बर्डन्स भी आते हैं, सब कुछ आता है हमारी लाइफ में हमारे एंसेस्टर्स का। जैसे कि आप ये देखेंगे कि कुछ फैमिली पैटर्न जैसे पुराने होते हैं कि एक राजा के लाइफ में जंग रही, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लड़े झगड़े, तो उनके आगे धीरे 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 पुष्ट का पतन होता रहा। एक एक करके फैमिली देखेंगे, आज की टाइम में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं पुरानी, जो 3-4 पुष्ट पहले जमींदारों की फैमिली हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमींदारों की फैमिली हुआ करती थी। एंड देन आई हैव फ्यू केसेस सच लाइक दिस, जिसमें 3-4 पुष्ट पहले वो लोग काफी बड़े जमींदार थे, एंड इन दी ग्रीड ऑफ प्रॉपर्टी, मनी एंड ऑल दैट, many people were murdered, many people were just hanged to death। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस फैमिली के अंदर ही होते आज तक होता है, लाइक वो लेडीज़ को हैं। निकाल देते हैं प्रॉपर्टी से या मेन को निकाल देते हैं। ऐसे यस, सारा करते रहते हैं। बहुत ये सारी मैं चीजें होती मैं हैं। यहाँ पे भी देखती हूँ, दो आई लिव इन जर्मनी। आपको ऐसा लगता हम्म। होगा कि वेस्टर्न सोसाइटी में ये सब नहीं होता, बहुत एविडेंटली होता है। इट इज अ ह्यूमन प्रैक्टिस, इट इज़ अ ये हर ह्यूमन जगह होता है। प्रैक्टिस, ये हर जगह होता है। तो भावना हाँ। जी, ये तो सारी ऐसी चीज़ों की इंसान अपने आप को कैसे सिंगुलर बनाए और अपने आप को इस चीज़ों से कैसे कट ऑफ करे? मैं तो हर इंसान को कहती हूँ, इवन इफ आप अच्छे फैमिली से और आपका सब कुछ है, एटलीस्ट एक अपार्टमेंट आप अलग से अपना ज़रूर करें। आपको नहीं पता आपके बच्चे या आपके भाई-बहन या क्या हो, एक अपना एक सेफ्टी नेट ज़रूर, एक जैसे कहते हैं ना, घर, रोटी, कपड़ा मकान, एक अलग सा तो करना ही चाहिए। मैं ये हर इंसान को ये एडवाइस देती हूँ। इतने सारे केसेज़ मैं खुद अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब देखती हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये थिंकिंग काफ़ी लोगों की ये नहीं है। उनको लगता है हाँ, मेरा लाइफ स्मूथ है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले आपने ये भी मेंशन किया था, जैसे 4 फेज़ आते हैं साढ़े साथी के, मैंने 2 ही सुना था अब तक। बट कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस व्हाट इट इज़? एक्चुअली सिनारियो ऐसा बनता है शिक्षा जी, कि हमारी लाइफ में अलग अलग जोन्स आते हैं ट्रांजिशन करने के, राइट? तो हम जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस समय पे हमारे एंसेस्ट्रल बर्डन्स हमारी लाइफ में इंटरवीन करना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे हम रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं, लाइफ को समझते जाते हैं। और जैसे कि एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगी कि सपोज किसी के एंसेस्टर्स में किसी को हॉस्टेज रखा गया हो, अच्छा। ठीक है? जबरदस्ती किसी को हॉस्टेज रखा गया हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें बन के आ जाती हैं कई पुश्तों बाद, मतलब कि उनके फैमिली के पूरे, सपोज किसी फीमेल को हॉस्टेज रखा गया है, तो उनकी लाइफ में ऐसा पैटर्न चलता आता है कि उनके जो घर की फीमेल्स हैं, वो सोशलाइज करना ही बंद कर देते हैं। वो एक बंधे हुए माहौल में रहना चाहते हैं, एंड दे बिगिन टू डेवलप ट्रस्ट इश्यूज। हुँ। उसका कोई सॉलिड रीजन नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे रीजन और पैटर्न लूप्स आ जाते हैं, हमारी लाइफ में कामिक पैटर्न्स आते हैं, लेकिन कई लोगों की लाइफ में बहुत एविडेंट सॉलिड रीजन नहीं होते, बट स्टिल दे हैव दिस फीलिंग इनसाइड, जहां पे बस इंट्यूटिवली फील होता है कि हम मूव ऑन नहीं कर दे पा नॉट रहे एबल हैं, टू ये ट्रस्ट। करने का। राइट, राइट। हाँ, हाँ, दे नॉट एबल टू ट्रस्ट, दे नॉट एबल टू सोशलाइज। तो ये सारी की सारी चीजें, और भी कई तरह के कई बॉन्डेजेस होते हैं, जैसे द पीपल हु गेट मर्डर्ड, राइट? तो उनके अंदर एक एंग्स्ट होता है। तो अननेसेसरीली किसी भी लाइफ फैमिली के एक पर्सन में या दो पर्सन में, मे बी इफ इट्स अ फीमेल सोल और अ मेल सोल और इवन अ कपल सोल, ठीक है, तो उनका एक एंग्स्ट कंटिन्यू होते हुए आता है, जो फैमिली के किसी एक पर्सन में बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में मिल जाएगा, दिख जाएगा। और इसी के साथ हमारे को, हमने मतलब अपनी हीलिंग जर्नी में जो हम लोगों को हीलिंग देते हैं, हमको प्रैक्टिस कराते हैं, क्षमा प्रैक्टिस कराते हैं, रिलीजिंग प्रैक्टिस कराते हैं हीलिंग में, तो हमने उसमें ये नोटिस करा है कि लोग फील कर रहे हैं, दे आर इन डीप पेन, बट दे नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, लाइक दे नॉट एबल टू इवन एक्सेप्ट कि मेरे ये एंग्स्ट का जो रीजन है वो मैं नहीं हूँ, मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स।
मतलब उनको खुद का रीज़न भी नहीं पता, अवेयरनेस भी लेकिन नहीं है लोगों को, राइट? उतना डेप्थ में लोग यस। नहीं जा रहे आजकल। हाँ, तो जब हम इंस्टा उनको वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस रहते हैं। दिलाते हैं और एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रियलाइज़ेशन उनको हो जाता है ना, सिर्फ़ अवेयरनेस आ जाता है, वहीं से उनकी लाइफ़ का चेंजिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी के लिए ग्लानि आ रही है, किसी चीज़ के लिए भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं यार शायद मैंने गलत किया, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ पश्चाताप करना चाहिए, ठीक है? द मोमेंट यू फील दिस, वहीं से आपको क्षमा मिलनी चालू हो जाती है और आपका जीवन सॉल्व होना चालू हो जाता है। आपको रियलाइज़ेशन भी हो गया ना इस चीज़ का, अवेयरनेस भी आ गई, वहीं से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं एंड जो सोल्स का बर्डन है ना, पूरे टाइमलाइन और जो आपके लिनिएज के सोल्स का बर्डन है, वो वहीं से ही फ्री होना चालू हो जाता है। वी डोंट नीड टू कैरी दैट इज़ नॉट आवर बर्डन। अमेजिंग, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, वाओ! दिस इज़ समथिंग मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को पता चले जो दूसरे इसमें नहीं पता चलता, यू नो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट्स। भावना जी, आप ये बताएँ कि ये सारी जो बर्डन्स, कुछ लोग पूजा-पाठ करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स लेते हैं, या यू नो दे कुछ लोग जैसे कोई क्रिस्टल डाल दिया, कोई स्टोन डाल दिया, कुछ ने रुद्राक्ष डाल दिया। ये क्यों ऐसे होता है? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन ये व्हेन एंड व्हाई? एक्चुअली क्या होता है कि सबके प्रैक्टिसेस अलग-अलग हैं, अलग-अलग मोडालिटीज़ के हिसाब से, बट व्हाट आई फॉलो, मैं अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है मैं शक्ति उपासक हूँ। तो पहले क्या होता है कि रोड मैप नहीं था, बट व्हेन नाउ आई हैव द रोड मैप, तो आई हैव कॉन्फिगर्ड इट कि मैं शुरू से ही प्रकृति के स्वरूप के रूप में चलती हूँ। शक्ति उपासक हूँ, तो प्रकृति के नियम के हिसाब से चलती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे जितने ज़ोडियाक्स हैं ना, 12 ज़ोडियाक्स, ये 4 तत्वों में विभाजित हैं और एक तत्व जो स्पेस एलिमेंट है, वो हमारी आत्मा है। ठीक है? अच्छा, तो हर 3 ज़ोडियाक को एक तत्व मिला हुआ है। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दैट एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस, ये तीनों फायर साइंस हैं। तो हम कैसे रेमेडीज देते हैं और कैसे एक्चुअली देनी भी चाहिए, यही सही तरीका है, तभी इंसान को क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट्स का ये हमेशा ये होता है कि मैंने जो रेमेडी दी उससे उनको क्विक रिजल्ट मिला। उसका कारण यही है कि उनका राशि देख के, उनका उनका सारा चीज़ चेक करके मैं ये देखती हूँ कि वो किस तत्व से बने हुए हैं। उनका शरीर किस तत्व में प्रधान है और उनको उसी से संबंधित हम रेमेडी देंगे। सपोज़ इफ समबडी इज़ फ्रॉम फायर एलिमेंट एज़ आई टोल्ड, तीनों राशि में से, तो वहाँ पे इंसान के लिए हवन, दीप प्रज्वलन, ये काम करेगा। अगर कोई एयर साइन में से है, ठीक है? तो एयर साइन वालों के लिए जप प्रैक्टिस जो है वो काम करेगी। अगर कोई अर्थ साइन में से है, तो उसके लिए स्टोन्स, रुद्राक्ष, ये सारी की सारी व्हिच कम्स फ्रॉम बीनीथ द अर्थ, वो अच्छा, काम करेगा। वाओ! एंड इफ समबडी इज फ्रॉम द वाटर साइन, तो उनके लिए कुछ भी जल में प्रवाह कर देना, वो काम करेगा। हम ऐसे तत्व समझते हैं और उसके हिसाब से रेमेडी देते हैं और तब इट इज बेसिकली द साइंस ऑफ क्राफ्टिंग। आप किसी को भी कोई रेमेडी नहीं दे सकते। सूट ही नहीं करेगा। इसलिए लोग यूजुअली एस्ट्रोलॉजर्स से डिसअपॉइंट होके आते हैं, क्योंकि वो उनका तत्व नहीं मतलब तत्व में घुसते ही नहीं है। वो बस ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये ग्रह है, अच्छा ये इस भाव में है, अच्छा ये रेमेडी दे दो सॉल्व हो जाएगा। वो खुद से क्राफ्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, ये एक सॉल्यूशन है, हाँ, ये रेसिपी है, ये कर लो। ये नहीं कि मैंने कुछ एडिशंस कर लिए या ये। थैंक यू सो यस, मच फॉर क्लैरिफाइंग। आई रियली होप कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जब वो इस पॉइंट पे आए और उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, मेरे ही नहीं, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो ये करते हैं, वो बार-बार ये साइकिल ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस, एंड मे बी इन द अपकमिंग सेशंस हम एक-एक चीज़ को, एक-एक मॉड्यूल्स को और थोड़ा डीपली जाएँगे। बट डेफिनिटली। आज हम बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हियर किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कोई और कोई रेयर डिजीजेस आ गई। ये ऐसे कैसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है, या इसका कोई हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी कुछ रिलेशन होता है कि जो हमें इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर बोर्न अंडर द स्टार इन दिस वे? Okay, so I will tell you a very beautiful combination and the reasoning behind it related to our karmas. Okay, first of all, astrological combinations मैं बताती हूँ आपको। किसी भी प्लैनेट के साथ जब राहु मिल जाता है, तो वो आपको उस प्लैनेट से संबंधित बॉडी पार्ट में बीमारी देगा ही देगा, अच्छा। गारंटी देगा। जैसे मंगल के साथ राहु मिल गया तो ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज दे देगा। हम्म। गुरु के साथ अगर राहु का इफेक्ट आ रहा है, तो वो आपको प्रॉब्ली हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, वेट गेन, अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो लिवर सिरोसिस, ये सारे के सारे इश्यूज, लिवर का परेशानी होना, किडनी का परेशानी होना, ये सब दे देता है। सैटर्न के साथ मिल गया तो वो किसी भी तरीके से आपके पैरों में प्रॉब्लम दे देगा, अर्थराइटिस दे देगा, इन तरह की प्रॉब्लम्स दे देगा। ठीक है, अगर वो मर्करी के साथ मिल गया, तो अगर वो पूरा प्रभाव दिखा रहा है, तो वो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा। तो ऐसे अलग अलग, जैसे मून के साथ मिल जाता है तो डिप्रेशन दे देता है, मेंटल इश्यूज दे देता है। ठीक है, तो जब राहु और केतु जैसे प्लैनेट्स जो हैं, ये दो प्लैनेट्स जब भी किसी भी प्लैनेट के साथ आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे देते हैं। ठीक है, अगर वो किसी ऐसी स्थिति में है, जैसे हमारे मारक हाउसेस में है, कुंडली के 2 हाउसेस मारक हाउसेस होते हैं, तो अगर इन हाउसेस में है, तो वो एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज देने लगते हैं, लाइक सीरियस इलनेसेस। अच्छा, इसकी दूसरी रीजनिंग ये रहती है कि राहु इल्यूजन देता है। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट होता रहता है, जिसमें हम अपने सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, बिकॉज राहु इज ब्रेन, ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के इल्यूजन में चलता है जब राहु का इम्पैक्ट होता है। तो हम अपने सारे के सारे इमोशंस को, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग वीक हो जाती है, हम सप्रेस कर ले जाते हैं। हमारे पास वी वर्क एज अ वेसल, जहां पे इस आत्मा के जितनी स्मृतियां हैं, जितनी मेमोरीज हैं, जो भी इकट्ठी होती हैं, वो सब इसी शरीर में स्टोर होंगी और अलग से किसी वेसल में तो होगा नहीं।
तो हमारे विचार हैं, हमारी चीजें इसी वेसल में स्टोर हो रहा है। तो जब भी कुछ पर्टिकुलर इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं, तो उन इमोशंस से रिलेटेड हमारी बॉडी में टॉक्सिक एनर्जी स्टोर होने लगती है। और जैसे जैसे बॉडी की कैपेसिटी कम होती जाती है, वो टॉक्सिक एनर्जीज जो है, मतलब वो दैट टॉक्सिक इमोशंस एंड एवरीथिंग, वो हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर पार्ट को सड़ाने लगते हैं, खराब करने लगते हैं। जैसे कि अगर मंगल की स्थिति खराब है और आप अपना गुस्सा बहुत एक्सट्रीम सप्रेस कर ले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सप्रेस कर ले जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज, हार्ट इश्यूज गारंटीड होंगे। अगर किसी के घर में कोई फियर है, किसी तरीके के फियर में लोग जीते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके का फियर हो सकता है, ठीक है, तो उस फियर के कारण दो चीजें इंपैक्ट होती है। फर्स्ट, योर आईज। सबसे पहले फियर जो है, फियर की स्टार्टिंग आपकी आईसाइट से चालू होती है, आपकी आईसाइट खराब होने लगेगी, और ये सारी की सारी चीजें। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन इट गोस एक्सट्रीम, इट गोस टू लिवर, इट गोस टू किडनी। वहां पे आप देखेंगे यूजुअली जो लोग किसी तरह के एडिक्शंस में होते हैं ना, वो एक्चुअली वो एडिक्शन को अपना ही रहे हैं अपने इमोशन को नंब करने के लिए फॉर अ वाइल। एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दे नंब इट, यस, एंड ये ह्यूमन नेचर है अनफॉर्चुनेटली। यस, ये मैं अपने हम स्टडीज एस्केप में भी ढूंढना चाहते देखती हैं, हूँ जी। एस्केपिज्म है वो। एंड तो वो हम जब एक्सेप्ट एस्केप भी नहीं, ढूंढते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। अगर काउंसलर्स पकड़ लेते हैं या कुछ लोग पकड़ लेते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को अवॉइड करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली, फेसिंग फेसिंग दोस इश्यूज। या एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट भावना जी, कैन विद सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव कर्मा, क्या हम हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें हम, मतलब ऑफ कोर्स, सॉरी, क्या ये हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स से, क्या हम इसे, ऑफ कोर्स हम इसको 100% तो नहीं मिटा सकते, बट क्या हम कुछ कर्मास ऐसे करके या कुछ पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स, चैंटिंग्स या ये सब करके, कैन वी मेक लाइफ बेटर? डू यू थिंक इट्स डेफिनेटली, पॉसिबल? या डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवन में खुश नहीं होना चाहता। देयर इज अ सेइंग कि मतलब एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि कितनी हंसी की बात है कि लोग सुखी रहने के लिए कितना दुखी रहते हैं। We can directly choose the happiness, but we choose the road towards, happiness from the sadness, है ना? But यहाँ पे सिंपल सी कंसेप्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जनरली आई वुड लाइक टू गिव जस्ट अ लिटिल ऑफ गाइडेंस टू योर ऑडियंस, कि जब भी हम लाइफ में कभी भी एक डाउनर फेज में है ना, तो हमें हमेशा एक चीज समझनी है कि जो भी लोग एक विनिंग, एक एम्बिशियस एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है, दे प्रोसेस थ्रू देयर बिलीव्स, थ्रू देयर स्किल्स, जो भी उनके पास एक्विजिशंस हैं रिलेटेड टू देयर स्किल सेट, अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, जो भी उन्होंने एक्वायर किया है, ठीक है, तो वो फंक्शन करते हैं स्ट्रेंथ से। बट जो लोग एक लूजिंग एटीट्यूड के साथ चलते हैं, वो फंक्शन करते हैं अपने फियर से, ठीक है, अपने डाउट से। तो आपको एक सिंपल चीज समझनी है कि जब भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा थॉट आए रिलेटेड टू फियर और डाउट, उसको सीधा रिजेक्ट करना है, ये कह के कि ये झूठ है। जी, फियर और साइकोसिस। जहां, यस, आप सीधा उसको रिजेक्ट कर दोगे, अपने माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा ये कहकर कि जितनी भी चीजों में आप देखेंगे कि जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, या मीडियोकर लाइफ जी रहे होते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में जो उनकी मेडियोक्रिटी से बाहर ना आने का मेन रीजन यही होता है कि वो अपने डर से, रिस्क ना लेने की एबिलिटी से, ठीक है, मतलब रिस्क ना लेने की आदत से, और हमेशा एक फियर में वो लोग जीते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस हिप्नोसिस से बाहर ही नहीं आ पाते। उनको हमेशा एक डाउट लगा रहता है कि अच्छा, अगर रिस्क ले लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। बट द पीपल हु रियली एम टू डू गुड इन देयर लाइफ, एम्बिशियस होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ होती है, दे फंक्शन विद स्ट्रेंथ। वो हमेशा अपने डाउट्स को और अपने फियर को टोटली रिजेक्ट करते हैं। तो हमें बस अपने दिमाग को ट्रेन करना है इस थॉट से कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी फियर और डाउट से रिलेटेड आ रहा है, वो झूठ है, बाकी सब सत्य है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फ्री विल जो हमारे कंट्रोल पे है, बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं ना, लोग नहीं क्लैरिफाई कर पाते। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आई मेनली सी a little bit of aged men in the group, and in this domain, of course I have seen even ladies who are very doing very well, and वो काफी सारे टीवी शोज वगैरह में आती है। लेकिन जो जो हमारा जनरेशन है, जो मिलेनियल्स वाला है, जो जेंजी वाला, दे आर ऑल्सो इनटू इट, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का मैं ट्रेनिंग देती थी 2 years ago। मैं CBT का प्रैक्टिस और ये सभी, लाइक आई यूज्ड टू रन सम रूम्स इन सम एप्स अर्लियर। तो आई डिड सी दैट पीपल आर विलिंग टू चेंज, बट उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दे आर वेरी क्यूरियस माइंड्स, जो ये क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए। तो आई रियली होप कि हमारे इस एपिसोड से दे गेट दीज आंसर्स। एंड भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। यू हैव अ डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड इवन ब्रेथ ऑफ नॉलेज दैट इज सो अमेजिंग। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप शेयर करें कि लोग आपके पास कैसे आए, आपके साथ कंसल्टेंसी कैसे बुक करें, व्हाट इज द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू रीच यू? या द फ्लोर इज ऑल योर्स। Okay, so as I am a Bhagavati Upasak, so my work is also by the name of that only. So my work is named by Kamakshi Spiritual Solutions. I have an Instagram page. For people who want to connect, they can directly DM me over there. And yeah, I'll be there for you.
सो फ्रेंड्स, सो सिंपल, सो ईज़ी। आप इंस्टाग्राम के साथ इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपका ईमेल आईडी वगैरह भी है वहाँ पे। यू कैन शूट हर Yeah. ईमेल एंड you will get all the information, how to book or how to pay and how to get the next date from her, and all the details will be written below in the description. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you so much, Bhavna ji. Thank you, dear audience, for being with us. And yes, we'll wait for the part 2.